Hi guys, in today's video we are going to discuss about only one method that can be used in all the essays. The essays are opinion essay when he demands for your opinion. The second is advantage and disadvantage essay. There is problem essay, discuss both views and give your opinion, and mixed essay. So these are 5 types of essays and students get confused that which type of thesis is to be used in which type of essay. So I'm bringing only one method for you so that there is no scope of confusion for you guys. Let's start the introduction. In your introduction, always make sure that you are writing only 2 to 3 sentences. The first one is paraphrasing, next is answer to the question, and another one line is outline, which tells the examiner that what you are going to talk about in the essay. So अगर हम sentences की बात करें तो the first one sentence will be in the passive voice. जब आप उसको paraphrase करने वाले हैं statement को, आप वेदर और या वेराज वगैरह का सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि आपसे कौन सा ओपिनियन या फिर कौन सा ऐसे पूछा गया है. आफ्टर टेलिंग योर पोजीशन यू आर गोइंग टू यूज़ अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर. वो वाइल हो सकता है, वाइल डाल के एक फ़ायदा, देन कोमा एक नुकसान, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हो सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट हो सकता है, या फिर नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो हो सकता है. Okay, so these are 4 types of sentences which can be used in the third sentence of introduction. Now I'm going to tell you how to use these sentences in introduction of different type of essays. Let's start with opinion essay. The first passive answer to the question and outline. Okay, that I have told you many a times. Question says, some people say that society should not pay tax to the government. Do you agree or disagree? So he is asking for your opinion. It means it is opinion essay कि सोसाइटी को टैक्स पे नहीं करना चाहिए टू दी गवर्नमेंट. तो क्या आप अग्री हैं या फिर डिसअग्री हैं? आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि सम पीपल से दैट, तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए. इट इज़ सेड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स. स्टेटमेंट है कि सोसाइटी शुड नॉट पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. अब इसका पैसिव वॉइस बना देते हैं. पैसिव वॉइस बनेगा टैक्स शुड नॉट बी पेड टू द अथॉरिटी बाय द कम्युनिटी. अथॉरिटी मैंने यूज़ किया है एज द सिनोनिम ऑफ गवर्नमेंट, और लोगों का या सोसाइटी का सिनोनिम मैंने यूज़ कर लिया है कम्युनिटी. So we have written the first sentence of the introduction in the passive voice. Now comes answer to the question. Question क्या है? Do you agree or disagree? That is to be addressed here. तो अगर कोई मेरे से पूछे कि लोगों को टैक्स पे नहीं करना चाहिए, तो I would be disagreeing with the statement. So that is why I am saying I completely disagree. Disagree की जगह मैंने यूज़ कर लिया है refute. So I completely refute the given statement and firmly believe that. Firmly का मतलब पूरी तरह से मैं ये believe करता हूँ कि. Next you are writing the benefits of paying tax. I am using the sentence structure not only and but also कि टैक्स रेवेन्यू ना सिर्फ इसमें हेल्प करता है बल्कि उसमें भी हेल्प करता है. So tax revenue not only helps in the economic progress of any country but also ensures the public well-being. कि पब्लिक का भला भी इंश्योर करती है ये जो टैक्स रेवेन्यू होती है. And your introduction is done. यानी पैसिव में आपने पैराफ्रेज किया, उसके बाद आंसर टू द क्वेश्चन एंड यू यूज्ड नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, क्योंकि आप एक ही साइड गए थे. सो ये था आपका ओपिनियन ऐसे. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऐसे इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऐसे, इन विच ही इज डिमांडिंग यू टू राइट द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग. क्वेश्चन देख लेते हैं. मैनी स्टूडेंट्स प्रेफर लिविंग ऑन कैंपस while studying at university.
यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कुछ बच्चे कैंपस में रहना पसंद करते हैं, यानी वहीं पे हॉस्टल में रहना पसंद करते हैं. सो व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? दैट इज़ योर क्वेश्चन. सो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वही हैं. पहले मैं पैसिव वॉइस में करूँगी इसको पैराफ्रेज. आंसर टू द क्वेश्चन. मैं वाइल करके एक फ़ायदा, कोमा करके एक नुकसान डाल सकती हूँ. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट करके एक फ़ायदा, कोमा डाल के एक नुकसान. एंड दिस इज़ द वे आई कैन यूज़ ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हियर एज पर माई कन्वीनियंस. सो पैसिव में इसको पैराफ्रेज करते हुए आई एम राइटिंग, अनडिनाइबली इट इज़ ट्रू दैट, कि वास्तव में यह सच है कि कैंपस हाउसिंग फैसिलिटी इज़ द सिनोनिम ऑफ लिविंग ऑन कैंपस. तो कैंपस हाउसिंग फैसिलिटी इज़ प्रेफर्ड बाय several students while pursuing their university education. यूनिवर्सिटी एजुकेशन के सिनोनिम आप यूज़ कर सकते हो टर्शरी एजुकेशन. तो वही चीज़ मैंने लिखा कि कैंपस हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रेफर्ड बाय several students while pursuing tertiary education. अब है आंसर टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन है व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स. सो मैं ऊपर जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं वाइल, इन स्पाइट वगैरह, उनमें से एज पर माई चॉइस आई कैन यूज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर. एक फ़ायदा और एक नुकसान, दैट इज़ गोइंग टू बी माई स्ट्रैटेजी. सो मैं यूज़ करने वाली हूँ डिस्पाइट सेंटेंस स्ट्रक्चर. डिस्पाइट के साथ एक फ़ायदा, देन देयर विल बी कोमा, देन देयर विल बी वन हार्मफुल इम्पैक्ट. कैंपस में रहने का फ़ायदा ये है कि आपको आने जाने की जो वो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ती, यानी कम्यूटिंग प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती. नुकसान ये है कि अगर आपके क्लासमेट्स तो नहीं कहूँगी, अगर आपके रूममेट्स अच्छे नहीं हुए तो आप कहीं ना कहीं बैड कंपनी में जा सकते हैं. सो दैट इज़ द थिंग. डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस phenomenon removes the commuting exertion of the students, कि यह commuting exertion यानी efforts को reduce करता है. then there is comma, I'm writing one disadvantage. Disadvantage is that sometimes they fall in bad company because of inappropriate hostel mates. सो इसी के साथ कुछ और फ़ायदे और नुकसान डिस्कस किए जाने वाले हैं आगे आने वाले पैराग्राफ्स में. दैट इज़ द आउटलाइन जो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, कि सम मोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आर टू बी आर्टिकुलेटेड इन द फॉलोइंग कंटेंट. एंड दैट्स हाउ यू डू योर इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज essay. नेक्स्ट टाइप ऑफ essay इज़ डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन. क्वेश्चन बोल रहा है कि सम पीपल से दैट पीपल शुड रिटायर एट द एज ऑफ 65 while others say that they should be allowed to work as long as they want to. Discuss both views and give your opinion. रिटायर हो जाना चाहिए और कुछ लोग बोलते हैं कि वो जब तक चाहें तब तक वर्क उन्हें करना चाहिए. And the same pattern to be used. First I will paraphrase in passive voice, then answer to the question. Okay, so first statement को paraphrase करते हुए, some people say that people should retire at the age of 65. I am writing, it is perceived यानी thought by a few individuals that retirement age should be fixed for the human workforce at 65. सेकेंड स्टेटमेंट को भी मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रही हूँ, लेकिन वो तो पहले से ही पैसिव वॉइस में है. सो आई विल राइट, वाइल की जगह आई एम गोना राइट हाउएवर. अनदर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी opposes it by saying that, by stating that they should continue working as per their desire, यानी उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए वर्क अपनी इच्छा के अनुसार. नेक्स्ट आता है आंसर टू द क्वेश्चन. अच्छा, ये डिस्कस बोथ व्यूज़ है, गिव योर ओपिनियन है, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है
कि I'm gonna use द कंपैरेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो वाइल हो सकता है, डिस्पाइट हो सकता है, ऑल्दो कुछ भी। सो वाइल करके जिस ओपिनियन के साथ मैं नहीं हूँ उसका आइडिया, फिर कोमा डाल के इन माई पर्सपेक्टिव लिख के आई एम गोना राइट द आइडिया फॉर माई ओन ओपिनियन। सो मैं एग्री हूँ कि उन्हें तो 65 में रिटायर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले जिसके साथ मैं नहीं हूँ उसका आइडिया मैं लिख रही हूँ। While the old workforce is budget friendly for the corporations, बजट फ्रेंडली ऐसे है कि गवर्नमेंट या फिर इन कॉरपोरेशंस या कंपनीज को नई ट्रेनीज को ट्रेन करने पर पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। वो ओल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ बजट फ्रेंडली। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, मैं इस ओपिनियन के साथ हूँ कि अच्छा, जब वो ये लोग ज़्यादा टाइम के लिए काम करेंगे तो यंगस्टर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। सो दैट इज़ माई मेन आइडिया कि आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट इट विल ट्रिगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को ये बढ़ावा देने वाला है। एंड बोथ द पर्सपेक्टिव्स आर टू बी आर्टिकुलेटेड इन द फॉलोइंग कंटेंट, दैट इज़ योर आउटलाइन। Next is your problem essay, and problem is there. These days in many societies of the world, people are unable to sleep. Why is it happening? What can be done about it? So लोग सो नहीं पा रहे हैं, that is the problem. इसके reasons and solutions आपसे पूछे हैं। सो पैसिव वॉइस में ही पैराफ्रेज करने वाली हूँ इसको, जैसे पिछले एसेस को किया था। जब आपको नींद नहीं आती है, सो दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड इंसोम्निया, राइट। सो दीज डेज इन मैनी सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड, दीज डेज के सिनोनिम्स यूज कर लिए हैं। इन रीसेंट टाइम्स, सो इन रीसेंट टाइम्स इंसोम्निया is faced by individuals in several nations across the globe. वाइल करके एक रीज़न एंड कोमा डाल के एक नुकसान। सो इसका कारण क्या है कि लोगों को नींद नहीं आती है। दैट कैन बी वर्कलोड और स्ट्रेस, कुछ भी हो सकता है। हम राइटिंग कॉम्पिटिशन हीयर, टेक्नोलॉजी भी इसका एक कारण हो सकता है कि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो टेक्नोलॉजी पे, तो आपको नींद नहीं आती है एंड ऑल दैट। So while competition is the main breeding ground is a synonym of reason. While competition is the main breeding ground of this nuisance is the synonym of again problem. It can be alleviated by taking some initiatives, यानी कुछ steps लेके इसको दूर किया जा सकता है। Some more accountable factors along with remedies will be elaborated in the following paragraphs, that is your outline. And this was the way you use these type of sentence structures in problem essay. I hope you have understood how this very sentence structure can be used in any type of essay. सो ये है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो हर एक ऐसे में यूज़ होंगे। इट डजेंट मैटर व्हाट द एग्जामिनर इज़ आस्किंग टू यू। अगर वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ रहा है तो वाइल करके एक एडवांटेज और कोमा डाल के एक नुकसान। अगर वो ओपिनियन ऐसे पूछ रहा है तो अगर आप पार्शली एग्री हैं तो वाइल करके पॉजिटिव कोमा डाल के एक नेगेटिव। और अगर आप एक ही साइड में हैं तो यू कैन यूज़ नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। और अगर आपसे पूछा है डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन, वाइल करके एक ओपिनियन कोमा डाल के अनदर वन ओपिनियन विद विच यू आर। अगर उसने आपसे पूछ लिया है प्रॉब्लम ऐसे तो रीजंस एंड सॉल्यूशंस होते हैं, तो वाइल करके वन रीजन और कोमा के साथ एक सॉल्यूशन। दिस वाइल सेंटेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिप्लेस्ड विद डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, ऑल्दो एंड येट एंड इवन दो स्टिल, as per your choice. In body paragraph 1 you can use as and so, either or, neither or nor, or with. And in body paragraph 2 you can make conditional sentences, you can make with unless, there are करके and during से बना सकते हो।
And in conclusion, you have the options to make either with even though, still, or with although and yet. And in any way, if the video was beneficial for you, please like it and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.